وزیراعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت حالیہ عالمی تناظر میں ملکی معاشی صورتحال پر جائزہ اجلاس، عالمی سطح پر حالیہ کشیدگی اور خطے پر پڑنے والے معاشی اثرات پر بریفنگ، وزیراعظم کی مصنوعی قلت پیدا کرنے والے پیٹرول پمپس اور کمپنیز کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی ہدایت، ذخیرہ اندوزی میں ملوث پیٹرول پمپ بند کر کے لائسنس منسوخ کرنے کا حکم، وزیر خزانہ اور وزیر پیٹرولیم کو چاروں صوبوں کا دورہ کرنے کی ہدایت، صوبوں کے ساتھ مل کر پیٹرولیم مصنوعات کی بچت اور بلا تعطل فراہمی کا منصوبہ تیار کیا جائے، وزیراعظم کی معاشی ترقی، سادگی اور بچت پر مبنی جامع لاہ عمل تشکیل دینے کی ہدایت۔ بچے ہمارا سرمایہ بھی ہیں اور اگلی جنریشنز ہماری آپ سے چلیں گی۔ ہم سب آپ کے طرف دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ اچھے اسکولوں میں ڈالیں، اچھے کالجز میں ڈالیں، اچھی یونیورسٹیز میں ڈالیں۔ آنے والا کل جو ہے وہ سارا جدید ٹیکنالوجی پہ ہے۔ سب بچوں کو ٹیبلٹس ملے گی، آپ اس سے جب بھی استعمال کریں گے تو اپنی آپ کی نالج بڑھے گی۔ ایوان صادر اسلام آباد میں یتیم بچوں کے اعزاز میں افطار ڈنر کی تقریب، یتیم بچوں کی کفالت اور تعلیم و تربیت معاشرے کے ہر فرد کی ذمہ داری، بچوں کی تعلیم و تربیت اور بہتر مستقبل کے لیے کام کرتے رہیں گے، یہ بچے پاکستان کا روشن مستقبل ہیں۔ صدر آصف علی زرداری کا خطاب، یتیم بچوں میں تحائف بھی تقسیم کیے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی سعودی عرب میں وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان سے ملاقات، ایرانی ڈرون اور میزائل حملوں سے پیدا ہونے والی سنگین صورتحال پر غور، باہمی دفاعی معاہدے کے تحت حملوں کو روکنے کے لیے مشترکہ اقدامات پر اتفاق، بلا اشتعال جارحیت علاقائی سلامتی اور استحکام کی کوششوں کو نقصان پہنچاتی ہے، جارحانہ اقدامات سے تنازعات کے پرامن حل کے راستے بند ہو جاتے ہیں، فریقین کا بحران کے پرامن حل کے لیے کوشاں دوست ملکوں کے ہاتھ مضبوط کرنے کی ضرورت پر زور، ISPR۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا متحدہ عرب امارات کے ہم منصب عبداللہ بن زید ال نہیان اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال اور امن و استحکام کی اہمیت پر گفتگو، اسحاق ڈار کا متحدہ عرب امارات پر ہونے والے حملوں پر گہری تشویش کا اظہار، ایرانی وزیر خارجہ سے صورتحال پر رابطے میں رہنے پر اتفاق، متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم کا خطے میں پائیدار امن اور سلامتی کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور خلیج تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل کا رابطہ، ٹیلی فونک گفتگو میں علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال، دونوں رہنماؤں کا کشیدگی میں کمی اور خطے میں امن و استحکام کے لیے بات چیت اور تعاون پر زور، سیکرٹری جنرل نے GCC کے ساتھ پاکستان کی مضبوط شراکت داری اور یکجہتی کو سراہا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی وفاقی وزیر سمندری امور جنید انوار چودھری کی رہائش گاہ احمد، وزیر اعظم کی جنید انوار چودھری سے ان کی والدہ کی وفات پر تعزیت، مرحومہ کے بلندی درجات اور اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا، وزیر اعظم کی جنید انوار چودھری کے بیمار والد کی جلد صحتیابی کی بھی دعا۔ بلوچستان میں سیکورٹی فورسز کی 2 الگ الگ کارروائیاں، بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخارج کے تعلق رکھنے والے 15 دہشت گرد مارے گئے، ہرنائی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 12 بھارتی سپانسر شدہ خوارج جہنم واصل، ضلع بسیمہ میں ایک اور انٹیلیجنس پر مبنی آپریشن میں 3 بھارتی سپانسر دہشت گرد مارے گئے، ہلاک خارج کے قبضے سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد، صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا کامیاب آپریشنز پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ آپریشن غضب للحق بھرپور انداز میں جاری، پاک افغان بارڈر پر شمالی اور جنوبی وزیرستان میں افغان طالبان اور فتنۃ الخوارج کے خلاف افواج پاکستان کی زمینی اور فضائی کارروائیاں، افغان طالبان اور فتنۃ الخوارج کی کئی پوسٹیں تباہ، بزدل دشمن اپنے مورچے چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور، پاک فوج کی کارروائی کے نتیجے میں متعدد افغان طالبان جہنم واصل، باقی پسپائی اختیار کرتے ہوئے فرار، پاک فوج کے بھرپور اور طاقتور جواب میں افغان طالبان فورسز کو بھاری نقصان کا سامنا ہے، سیکیورٹی ذرائع۔ افواج پاکستان نے مارکہ حق میں یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان اپنا دفاع کر بھی سکتا ہے، کرنا جانتا بھی ہے،
ہمارا ملک ایک دفاعی طور پہ مضبوط ملک بن کے سامنے آیا ہے اور سفارتی طور پہ ایک مضبوط ملک بن کے سامنے آیا ہے. پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت بھرپور جو ہے طریقے سے پاکستان کے مفاد میں کام کر رہے ہیں. پاکستان کے مضبوط دفاع کی دنیا معترف، جنگ تنازعات کا حل نہیں. پاکستان قیام امن کے لیے اقوام عالم میں اپنا کلیدی کردار ادا کر رہا ہے. ملک کی دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے. قربانیوں سے حاصل ملک کا دفاع ناقابل تسخیر ہے. دشمن میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہیں کر سکتا. وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کا سابق صدر رفیق تارڑ کی 4تھی برسی پر تقریب سے خطاب. 9 مئی جی ایچ کیو حملہ کیس عمر ایوب، سرتاج گل، مراد سعید، شبلی فراز اور شہباز گل سمیت 47 اشتہاری ملزمان کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی. راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت کا ملزمان کی جائیدادیں بھی ضبط کرنے کا حکم. 47 اشتہاری ملزموں کا ٹرائل مکمل کرنے کے بعد عدالت نے فیصلہ جاری کیا. مقدمے میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی سمیت 118 ملزموں پر فرد جرم عائد کی گئی. سزا پانے والے 9 مئی کے واقعات کی منصوبہ بندی میں مرکزی ملزم قرار. ملزمان پر 9 مئی کے واقعات میں جلاؤ گھیراؤ، توڑ پھوڑ، پولیس پر حملوں اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کا الزام تھا. عدالتی فیصلہ. بحریہ ٹاؤن منی لانڈرنگ کیس، چیف آپریٹنگ آفیسر ریٹائرڈ کرنل خلیل الرحمان کو 10 سال قید بامشقت کی سزا. عدالت کا مجرم کی تمام جائیدادیں ضبط کرنے کا حکم. کیس میں 1 ارب 60 کروڑ روپے کی منی لانڈرنگ ثابت ہو گئی. ملک ریاض، علی ریاض اور شاہد قریشی اشتہاری قرار. پنجاب میں پیٹرولیم مصنوعات کے ذخیرہ اندوزوں اور منافع خوروں کے خلاف آپریشن کا آغاز. وزیر اعلیٰ مریم نواز کے حکم پر پیرا فورس متحرک. منافع خوری کے لیے مصنوعی قلت پیدا کرنے والے عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم. ملوث پمپس فوری سیل اور لائسنس منسوخ ہوں گے. فیلڈ افسروں کو پیٹرول پمپس کی سخت مانیٹرنگ کا حکم. پنجاب میں پیٹرولیم مصنوعات کا وافر ذخیرہ موجود ہے. عوام افواہوں پر کان نہ دھریں. مصنوعی قلت کا شوشہ چھوڑنے والوں کا انجام عبرتناک ہوگا. وزیر اعلیٰ پنجاب. مشرق وسطی میں کشیدگی سے عالمی توانائی مارکیٹ کی صورتحال خطرناک. بحران سے عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں پر اثرات مرتب ہو رہے ہیں. تیل کے بحران سے نہ صرف ترقی یافتہ بلکہ ترقی پذیر ملک بھی متاثر ہوئے ہیں. بطور قوم ہمیں مل کر بحران اور اس کے اثرات سے نکلنا ہوگا. پیٹرولیم مصنوعات کے استعمال میں احتیاط برتیں. وفاقی وزیر احسن اقبال. مشرق وسطی میں کشیدہ صورتحال. سعودی دارالحکومت ریاض میں پاکستانی سفارت خانے اور جدہ میں قونصل خانے میں پاکستانیوں کی سہولت کے لیے ہیلپ لائنز قائم. ہیلپ لائنز 24 گھنٹے فعال رہیں گی. پاکستانی زائرین اور مسافروں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کریں گی. فضائی آپریشن متاثر ہونے کے باعث سعودی عرب میں موجود عمرہ زائرین اور دیگر پاکستانی مسافر مشکلات کا شکار ہیں. منسوخ ہونے والی پروازوں کی بروقت ری شیڈیولنگ اور متاثرہ مسافروں کے قیام و طعام کے مناسب انتظامات کو یقینی بنایا جا رہا ہے. ایران کی پڑوسی ملکوں کے خلاف کوئی حملہ نہ کرنے کی مشروط یقین دہانی. ایران پر حملہ نہ کیا گیا تو پڑوسی ملکوں پر بھی کوئی حملہ نہیں کیا جائے گا. عبوری لیڈرشپ کونسل نے حملہ نہ کرنے کی منظوری دی. پڑوسی ملکوں پر میزائل حملے نہیں کیے جائیں گے. گزشتہ حملوں پر پڑوسی ملکوں سے معذرت خواہ ہیں. ایران کا مقصد جارحیت نہیں بلکہ اپنے دفاع اور خود مختاری کی حفاظت ہے. ایران امریکہ اور اسرائیل کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے گا. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا سرکاری ٹیلی ویژن پر اہم ویڈیو پیغام. امریکی اور اسرائیلی حملوں کی وجہ سے ایران نے ہمسایہ ملکوں سے معافی مانگی. اب ایران کو مشرق وسطی کا ہارا ہوا ملک کہا جائے گا. امریکی افواج نے ایران کے 42 بحری جہاز تباہ کر دیے. فضائی طاقت اور ٹیلی کمیونیکیشن نظام کا بڑا حصہ بھی ناکارہ بنا دیا. ایران بری طرح شکست کھا رہا ہے. آج ایران کو مزید سخت حملوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ایران کے رویے کی وجہ سے اب کچھ ایسے علاقے اور گروہ نشانے پر آ سکتے ہیں جنہیں پہلے نشانہ نہیں بنایا گیا. امریکی صدر ٹرمپ. ایران پر اسرائیلی اور امریکی حملوں میں شدت. تہران میں مہرآباد ایئرپورٹ پر دھماکے. وسطی صوبے اصفہان میں بمباری سے 8 افراد شہید، متعدد زخمی. 1300 سے زیادہ شہریوں کی شہادتیں. جنوبی لبنان پر بھی اسرائیلی بمباری. نبشت قصبے پر بمباری میں 26 شہری جاں بحق، 35 زخمی. لبنان میں جاں بحق افراد کی تعداد 217 ہو گئی. 1 لاکھ افراد کیمپس میں منتقل.
ईरान के इसराइल में मुतादिद मकामात पर मिसाइल और ड्रोन हमले, तल अवीव ईरानी हमलों से गूंज उठा। उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और कुवैत में अमरीकी तंसीबात पर भी हमले। थार्ड और पैट्रियाट एयर डिफेंस रेडार और मुतादिद बैटरियां तबाह। ईरानी हमलों में ईंधन जखीरा करने की सहूलियात और रनवेज को भी निशाना बनाया गया। ऑपरेशन के ताज़ा फेज में नई जनरेशन के मिसाइल और ड्रोन इस्तेमाल किए गए। हिम्मत है तो आबनाए हुर्मज में बहरी जहाज भेज कर दिखाएं। पासदारान इनकलाब का अमरीकी सदर ट्रंप को चैलेंज। गोलियों से तो आप बच जाएंगे, राइट लेफ्ट चोट लगेगी, मिसाइल से आप बचेंगे नहीं। और ये कहने की बातें थी कि बंकर बहुत अच्छे होते हैं। 100 फीट गहरे बंकर में हमने देखा कि लोग मर गए वहाँ पे, और आपको कुछ नहीं बताया जा रहा असलियत। सरकार आपको कुछ बता नहीं रही, आप वहाँ विजुअल्स नहीं ले सकते हैं लाशों के, अस्पताल आप नहीं जा सकते हैं। और जब घटना होती तो हमें मालूम ही नहीं कि जगह कौन सी, जैसे आपको हमें मालूम है कि अभी गौर सिटी हमें जाना है, वहाँ पे किस जगह जाना है घटना, ये हमें मालूम ही नहीं, क्योंकि कौन बताने वाला हमें। और जब हम अगले दिन सुबह पहुंच रहे हैं, और सारे और भी पत्रकार, सिर्फ साधना नहीं और भी जितने पत्रकार, बोला जा रहा है कि ओनली वन कैजुअलिटी, 1% डाइड। लेकिन वहाँ पे जो लोकल का जो इजरायलियन जो कि यहाँ पे हिमाचल वचल आते हैं फूकने के लिए, उन्होंने बताया देयर वर 4 हाउसेज, नोबडी इज अलाइव। तल अवीव में मौजूद भारतीय सहाफी बृजमोहन ने ईरान की इसराइल पर बमबारी से होने वाली तबाही की हकीकत सामने ले आया। ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी ने इसराइल की फ़िज़ाई और दिफाई सलाहियतों को मफलूज करके रख दिया है। इसराइली हुकूमत ने अपने जानी और माली नुकसान छुपाने के लिए मीडिया पर सख्त पाबंदियां आयद कर रखी हैं। इसराइल की नाम नहाद जदीद तरीन जंगी टेक्नोलॉजी की कलई खुल गई। अमरीका की इसराइल को हंगामी सूरत हाल में हथियार फरोख्त करने की मंजूरी। ट्रंप इंतजामिया ने इसराइल को $151 मिलियन के बम फरोख्त करने की मंजूरी दी। इसराइल को मजीद 12,000 BLU 110 बम फराहम किए जाएंगे। इसराइल को तकनीकी मदद और मुतल्लिका पुर्जे भी दिए जाएंगे। हंगामी सूरत हाल के बायस इसराइल को हथियारों की फौरी मंजूरी जरूरी थी। अमरीकी महकमा खारजा। अमेरिका ने भारत को रूस से तेल की खरीदारी के लिए 30 रोजा आर्जी इजाजत दे दी। अब अमेरिका तय करेगा कि भारत तेल कहां से खरीदेगा और कहां से नहीं। अगर भारत ने अमेरिकी मर्जी के खिलाफ तेल खरीदा तो इसे सजा भी भुगतना पड़ सकती है। राहुल गांधी। कांग्रेसी MLA प्रियंक खड़गे की भी भारतीय हुकूमत पर कड़ी तनकीद। भारतीय हुकूमत हर अमेरिकी हुक्म पर झुक रही है और बीजेपी ने खारजा पॉलिसी को मजाक बना दिया है। भारतीय जंगी तैयारों की मुसलसल तबाही, भारत में बनने वाले नाकिस इंजन हैं। BBC की तहलका खेज रिपोर्ट में इंकशाफ। भारतीय फजाइया लड़ाका तैयारा कार्बी एंगलोंग के मकाम पर गिरकर तबाह हुआ। इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन लीडर अनुज और फ्लाइट लेफ्टिनेंट परेश की हलाकत की तस्दीक। SU-30 को इंडियन फजाइया की रीढ़ की हड्डी तस्वुर किया जाता है। इंडियन एयरफोर्स के पास SU-30 साफ के 272 फाइटर जहाज थे, जो अब सिर्फ 260 रह गए। अफगान तालिबान रजीम ने खवातीन और लड़कियों की तालीम पर पाबंदी के बाद ईरान इनकी मीडिया से राब्ते भी खत्म कर दिए। मकामी रेडियो स्टेशंस जो तालीम से महरूम लड़कियों के लिए तालीमी प्रोग्राम नशर करते थे, तालिबान के हुक्म पर बंद। अफगान जर्नलिस्ट सेंटर ने इस इकदाम को आज़ाद मीडिया के खिलाफ कारी ज़र्ब करार दिया। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज के इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां जारी। गैर कानूनी नजरबंद कश्मीरी हुर्रियत रहनुमाओं, कारकुनों और नौजवानों की हालत बाइस तशवीश। भारत नजरबंद अफराद को बड़े पैमाने पर सियासी इंतकाम का निशाना बना रहा है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर फाइनल में आज पाकिस्तान और इंग्लैंड मध्य मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे शुरू होगा। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने जापान को 4-3 से शिकस्त देकर 8 साल बाद हॉकी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने पर कौमी टीम को मुबारकबाद। मेरी इंजरी का जो रिहैब है वो MCA में चल रहा है अंडर दी सुपरविजन ऑफ डॉक्टर जुवेद मुगल साहब, और अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी बेहतर है मेरी इंजरी। मैं सलमान रज़ाक इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर। मैं जैसे कि NCA में डॉक्टर जुवेद मुगल के अंडर रिहैब मेरा चल रहा है, जो कि मोहसिन नकवी साहब का एक बड़ा बेहतरीन इनिशिएटिव है। मैं चाहता हूँ कि इस तरह के जो सेंटर हैं पाकिस्तान में और भी बनाया जाए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की हिदायत पर नेशनल क्रिकेट अकेडमी में कौमी हॉकी खिलाड़ियों का रिहैब प्रोग्राम जारी।
रिहैब प्लान 6 हफ्तों पर मुश्तमिल है। हॉकी खिलाड़ी हन्नान शाहिद हैमस्ट्रिंग इंजरी, जबकि सलमान रजा घुटने की इंजरी में मुब्तला है। ICC T20 वर्ल्ड कप का फातेह कौन? फाइनल में कल न्यूजीलैंड और भारत मध्य मुकाबला शाम 6:30 बजे PTV स्पोर्ट्स एजी पर बराह रास्त। भारत चौथी मरतबा और न्यूजीलैंड दूसरी मरतबा T20 वर्ल्ड कप फाइनल खेल रहा है। इवेंट की तारीख में भारतीय टीम अब तक न्यूजीलैंड से मैच नहीं जीत सकी। कीवीज रिकॉर्ड बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म। और T20 वर्ल्ड कप में भारत के नाकिस इंतजामात, गैर मुल्की खिलाड़ी खुलकर बोलने पर मजबूर। वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमें वर्ल्ड कप में सफर खत्म होने के बाद भारत में फंस गईं। मुझे घर वापस जाना है, बस इतना बता दो कि हमें यहाँ कब तक रुकना है। वेस्ट इंडीज के हेड कोच डैरिन समी का सोशल मीडिया पर पैगाम। मामला संगीन होने पर ICC ने टीमों के लिए चार्टर्ड तैयारी का बंदोबस्त कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं सलमा कौसर। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। साथ रहिए। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हालिया आलमी तनाजुर में मुल्क की माशी सूरत हाल पर जायजा इजलास हुआ। इजलास में आलमी सतह पर हालिया कशीदगी और उसके खत्ते पर मुरतब होने वाले माशी असरात पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी सतह पर मौजूदा माशी दबाव के पेश नज़र सादगी और बचत पर मबनी लाहे अमल तश्कील देने की हिदायत की। उन्होंने कमेटी को आइंदा 48 घंटों में इस हवाले से काबिल अमल तजावीज़ पेश करने की हिदायत करते हुए कहा कि अवाम पर न सिर्फ बोझ कम से कम हो, बल्कि अवामी रिलीफ को अव्वलीन तरजीह दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़श्ता हफ्ते हालिया कशीदगी के आलमी सतह पर मुआशी असरात का जायजा लेने के लिए कमेटी तश्कील दी थी, जो इस हवाले से लाहे अमल पर काम कर रही थी, जिसकी वजह से मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कमी पैदा नहीं हुई। गुज़श्ता रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा कमेटी की तजवीज़ पर हुआ, जिसमें आलमी सतह पर इजाफे का कम से कम बोझ सार्फिन पर मुंतकिल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि जो पेट्रोल पंप या कंपनी भी मसनूई किल्लत पैदा करने या ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्विस पाई जाए, इसको फौरी बंद किया जाए और इसका लाइसेंस मनसूख करके कानूनी कार्रवाई की जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर ख़जाना और वज़ीर पेट्रोलियम को हिदायत की कि वो चारों सूबों का दौरा करें और सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर पेट्रोलियम मसनूआत की बचत और अवाम को बिला ताअत्तुल फ़राहमी के हवाले से लाहे अमल तैयार करें। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सईद आसिफ मुनीर ने सऊदी अरब का दौरा किया और वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात की। इस मौके पर ईरान की जानिब से मुमलिकत पर ड्रोन और मिसाइल हमलों के नतीजे में पैदा सिक्योरिटी सूरत हाल की संगीनी और इसे रोकने के लिए स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदे के तहत मुश्तरका इक़दाम पर तबादला ख्याल किया गया। इस बात पर जोर दिया गया कि बिला इश्तिआल जाहिरियत खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशों को नुकसान और तनाज़ात के हल के इम्कानात को कम कर देती है। दोनों जानिब से इस उम्मीद और ख्वाहिश का इजहार किया गया कि बरादर मुल्क ईरान दानिशमंदी और दूर अंदेशी का मुजाहरा करेगा और बहरान के पुरअमन हल के लिए कोशिश करने वाले दोस्त मुल्कों की काविशों को तक़वियत देगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार और ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची के माबैन टेलीफोनिक राबता हुआ है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म ने बदलते हुए इलाक़ाई सूरत हाल पर बात की। दोनों रहनुमाओं ने हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया और राब्ते में रहने पर इत्तेफाक किया।
नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार की मुत्तहिदा अरब अमारात के हम मनसब अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और अमन व इस्तेहकाम की अहमियत पर जोर दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने हालिया हमलों पर तशवीश का इजहार किया और मुत्तहिदा अरब अमारात और उसके अवाम के साथ पाकिस्तान की जानिब से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार और गल्फ ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल जासिम मोहम्मद अल बदेवी के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सेक्रेटरी जनरल जासिम मोहम्मद अल बदेवी ने गल्फ ताउन तंजीम के साथ पाकिस्तान की मजबूत शराकतदारी और यकजहती को सराहा। फ्रीकैन ने खित्ते में कशीदगी में कमी की अहमियत पर जोर दिया और अमन व इस्तेहकाम के लिए मकालमे और ताउन की ज़रूरत पर इत्तिफाक किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार और दौलत मुश्तरका की सेक्रेटरी जनरल शर्ली बुजवे के माबैन टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक गुफ्तगू के दौरान नायब वज़ीर-ए-आज़म ने खित्ते की मौजूदा और बदलती हुई सूरत हाल के बाइस लंदन में होने वाले कॉमनवेल्थ मिनिस्ट्रियल एक्शन ग्रुप और कॉमनवेल्थ के वज़ीर खारजा के इजलास में शिरकत न करने से आगाह करते हुए कहा कि लंदन में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर मेरी नुमाइंदगी करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने दौलत मुश्तरका में पाकिस्तान के किरदार और खिदमात को उजागर किया और सेक्रेटरी जनरल समेत कॉमनवेल्थ के तमाम रुकन ममालिक को 9 मार्च को मनाए जाने वाले कॉमनवेल्थ डे की मुबारकबाद पेश की। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि बच्चे कौम का मुस्तकबिल हैं, इन्हें जदीद टेक्नोलॉजी से रोशनास करना वक्त की अहम ज़रूरत है। आलमी यौम यतामा के हवाले से ईवान सदर में बच्चों के एजाज़ में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया। क्या तफसील बता रहे हैं उमर फारूक। ऐवान सदर इस्लामाबाद में पाकिस्तान आर्फन केयर फोरम के तहत मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों के एजाज़ में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि बच्चे कौम का कीमती सरमाया और हमारे रोशन मुस्तकबिल की जमानत हैं। बेहतरीन और जदीद तालीम की फराहमी से उन्हें मुआशरे का मुफीद शहरी बनाया जा सकता है। सदर ममलकत ने कहा कि यतीम बच्चों की कफालत और तालीम और तरबियत मुआशरे के हर फर्द की जिम्मेदारी है। बच्चे हमारा सरमाया भी हैं और अगली जनरेशन हमारी आपसे चलेंगी। हम सब आपके तरफ देख रहे हैं कि इंशाअल्लाह अच्छे स्कूलों में डालें, अच्छे कॉलेजेस में डालें, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में डालें। आने वाला कल जो है वो सारा जदीद टेक्नोलॉजी पे है। सब बच्चों को टैबलेट्स मिलेगी, आप उससे जब भी इस्तेमाल करेंगे तो अपनी आपकी नॉलेज बढ़ेगी। पाकिस्तान आर्फन केयर फोरम के चेयरमैन रिटायर्ड एयर मार्शल फारूक हबीब ने यतीम बच्चों की मेहमान नवाजी पर सदर ममलकत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि हमारी जिम्मेदारी और इन बच्चों का पहला हक ये है कि उन्हें ऐसा महफूज माहौल फराहम किया जाए जहाँ शफकत, तालीम और तरबियत और सेहतमंद जिंदगी के बेहतरीन और आसान मौके मुयसर हों। तकरीब के आखिर में सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने बच्चों में जदीद तरीन टैबलेट्स तकसीम की ताकि वो दौरे जदीद के उलूम से इस्तेफादा कर सकें। तकरीब में 22 तंजीमों के तहत चलने वाले स्कूलों के बच्चों और बच्चियों ने शिरकत की। इस मौके पर सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने मुल्क के दूर दराज इलाकों से आने वाले यतीम बच्चों के साथ रोज़ा इफ्तार किया और उनके साथ खुशगवार लम्हात गुजारे। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ वफाकी वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी की रिहाइशगाह पर गए और उनसे वालिदा की इंतकाल पर ताज़ियत की। वज़ीर-ए-आज़म ने मरहूमा के बुलंदी दर्जात और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। उन्होंने जुनैद अनवार चौधरी के वालिद की अलालत पर मिजाज पुरसी भी की और उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। बलूचिस्तान में 2 अलग अलग कार्रवाइयों के दौरान भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले गिरोह फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले 15 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। पहली कार्रवाई में सिक्योरिटी फोर्सेज ने हरनाई में फितनल खारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया और फायरिंग के तबादले के दौरान 12 खारिज को हलाक कर दिया। दूसरी कार्रवाई जिला बसीमा में की गई, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने फितनल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द हलाक कर दिए। दहशतगर्दों के कब्जे से असला, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद किया गया। हलाक अनासर दहशतगर्दी की सरगर्मी में मुलव्विस थे। अज़्म इस्तेहकाम विजन के तहत सिक्योरिटी फोर्सेज की दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिम भरपूर ताकत के साथ जारी रहेगी। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान में भारतीय हवाई याफ्ता फितनल खारिज और फितनल हिंदुस्तान से वाबस्ता दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशंस पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन पेश किया है। सदर मुमलिकत ने कहा कि मुल्क से बैरूनी पुष्तपनाही में होने वाली दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि अज़्म इस्तेहकाम विजन के तहत सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबियां हासिल कर रही हैं। हम मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम अफ़वाज पाकिस्तान के शाना बशाना है।
रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई GHQ हमला केस में उमर अयूब, जरताज गुल, मुराद सईद, शिबली फराज और शहबाज गिल समेत 47 इश्तिहारी मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजा सुना थी। अदालत ने फैसले में मुल्जिमान को 5-5 लाख रुपए जुर्माना और जायदादें जब्त करने की सजा भी सुनाई। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान मनसब खान। 9 मई GHQ हमला केस में सजा पाने वालों में उमर अयूब, जरताज गुल, मुराद सईद, शिबली फराज, हमाद अजहर, कमर शोजब, शेख राशिद शफीक, शहबाज गिल, जुल्फी बुखारी और दीगर शामिल हैं। फैसले में लिखा है कि दिसंबर 2024 में अदालत ने बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी समेत 118 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की। ट्रायल के दौरान होने वाली दर्जनों समातों में इस्तगासा की जानिब से 44 गवाहों के बयानात कलम बंद किए गए। अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक 118 मुल्जिमान में से 18 मुल्जिमान ट्रायल के दौरान मुसलसल गैर हाजिर रहे, जबकि 29 मुल्जिमान मुकदमा दर्ज होने के बाद कभी अदालत में पेश ही नहीं हुए। 6 जनवरी 2026 को स्पेशल प्रोसिक्यूटर की दरखास्त पर अदालती कार्रवाई में 47 इश्तिहारी मुल्जिमान को दीदा और दानिस्ता मफरूर करार दिया गया। 8 जनवरी को अखबारात में इश्तिहार शाया करवाया गया और उन्हें अदालत में पेश होने की मोहलत दी गई, ताहम कोई मुल्जिम अदालत में पेश न हुआ। बाद अज़ां अदालत ने इश्तिहारी मुल्जिमान के लिए स्टेट कौंसल मुकर्रर किया और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की सेक्शन 21L के तहत उनका अलहदा ट्रायल चलाया गया। इस दौरान इस्तगासा ने 19 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड करवाए, जबकि स्टेट कौंसल ने गवाहों पर इजरा भी की। 9 मई GHQ हमला केस में तमाम इश्तिहारी मुल्जिमान का अलहदा से ट्रायल चलाया गया। 9 मई 2023 को बानी PTI की गिरफ्तारी के बाद मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे हुए। रावलपिंडी में मुश्तिल मुजाहरीन ने GHQ गेट, हमजा कैंप, आर्मी म्यूजियम और 6 रोड मेट्रो स्टेशन पर हमले किए और तोड़ फोड़ की। वाक़यात के बाद 9 और 10 मई को थाना आरे बाजार में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट समेत मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे में मुतअद्दिद नामजद और नामालूम अफराद को मुलजिम बनाया गया, जबकि तहकीकात के लिए ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी गई। JIT ने मुख्तलिफ वीडियोज, शवाहिद और गवाहों के बयानात की रोशनी में तहकीकात मुकम्मल की। बाद अज़ां पुलिस ने मुकदमे का चालान इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में जमा करवाया। ट्रायल मुकम्मल होने के बाद इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने फैसला सुनाया। इमरान मनसब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रावलपिंडी। और अब खबर अफगान तालिबान और फितना खारिज के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान के जारी ऑपरेशन गज़ब लिल हक की। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने आज शिमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान के साथ पाक अफगान सरहदी इलाके में मौसर ज़मीनी और फ़िज़ाई कार्रवाई करते हुए दुश्मन को भारी जानी और माली नुकसान पहुँचाया है और इसे भागने पर मजबूर कर दिया। तफसील से आगाह करेंगे अरसलान असद। जब से तालिबान रजीम के मुसल्लह गिरोह के खिलाफ ऑपरेशन गज़बुल लिल हक के तहत पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की भरपूर कार्रवाई शुरू की गई है, अफगान तालिबान को अपने ही मुल्क में छुपने की जगह मिलना मुश्किल हो गई है। अफवाज पाकिस्तान की शुमाली वज़ीरिस्तान और जनूबी वज़ीरिस्तान के साथ पाक अफगान सरहद पर फ़ज़ाई कार्रवाई में अफगान तालिबान की मुतअद्दिद पोस्टें तबाह कर दी गयी। पाक फौज की मौसर जमीनी कार्रवाई से बुज़दिल दुश्मन अपनी पोस्टें छोड़कर फरार होने पर मजबूर हो गए, जिनको वीडियो में सरपट भागते हुए वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। पाकिस्तानी अफवाज की मौसर हिकमत अमली के बाइस अफगान तालिबान को भारी जानी और माली नुकसानात बर्दाश्त करने पड़े, जबकि बाकी मानदा ने भागकर जान बचाने और पसपाई इख्तियार करने में ही अपनी आफियत समझी। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि अफगान तालिबान और फितनल ख्वारिज के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान की ऑपरेशन गज़बुल लिल हक के तहत अपने अहदाफ हासिल होने तक ज़मीनी और फ़ज़ाई मौसर कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। अरसलान असद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। अफगान तालिबान और फितनतुल ख़वारिज के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान की मौसर कार्रवाइयाँ जारी हैं और अभी आपको आगाह करें कि ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है अगर पड़ोसी मुल्कों से ईरान पर हमले ना हुए तो ईरान भी उन पर जवाबी हमले नहीं करेगा। अमरीकी और इसराइली हमलों से ईरान में 1300 से ज़्यादा शहरी शहीद हो चुके हैं। तफसील बता रहे हैं अनीस आवान।
اسرائیل اور ایران کی جانب سے ایک دوسرے پر حملوں کا سلسلہ جاری ہے اور مشرق وسطیٰ میں جاری یہ لڑائی 8ویں روز میں داخل ہو گئی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے دارالحکومت تہران سمیت ایران میں مختلف مقامات کو نشانہ بنایا ہے، جبکہ ایران نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ قطر، عمان، کویت، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب میں امریکی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر کے مطابق ملک میں ہونے والے حملوں میں اب تک کم از کم 1332 شہری مارے گئے ہیں۔ لبنان کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملوں میں 217 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیل میں اب تک 10 افراد کی ہلاکت ہوئی ہے۔ متحدہ عرب امارات نے بھی 3 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ ایرانی شہری نے BBC کو بتایا کہ تہران میں بمباری کا سلسلہ جاری ہے اور جمعے کی شب مہرآباد ایئرپورٹ کے قریب آگ کے شعلے بلند ہوتے دیکھے گئے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے انتباہ کیا ہے کہ اب ایران کو مزید شدت سے نشانہ بنایا جائے گا اور فوج ایران میں نئے اہداف کو نشانہ بنائے گی۔ دوسری جانب ایران کے صدر نے پڑوسی ممالک سے معذرت کرتے ہوئے ان پر حملے نہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ اگر ان ممالک سے ایران پر حملے نہ ہوئے تو ایران بھی ان پر حملے نہیں کرے گا۔ عرب لیگ کے وزرائے خارجہ کا کل ہنگامی اجلاس ہو رہا ہے جس میں عرب ممالک کی سرزمین پر ایران کے حملوں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ انیس اوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ویدر اپ ڈیٹ میں خوش آمدید۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ تاہم شمالی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برف باری ہو سکتی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں صبح اور رات کے اوقات میں سرد رہا۔ تاہم بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر ہلکی بارش ہوئی۔ میدانی علاقوں میں دن کے درجہ حرارت معمول سے زیادہ رہے۔ سب سے زیادہ بارش خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں ریکارڈ کی گئی۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت مٹھی 39، تربت، شہید بے نظیر آباد، لسبیلا، حیدرآباد اور چھور میں 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور ملک کے چند دیگر شہروں میں ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل: اسلام آباد 15، لاہور 18، کراچی 21، پشاور 18، کوئٹہ میں 10، ملتان میں کم سے کم درجہ حرارت 18 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، گلگت 12، اسکردو 7، مظفر آباد 14، جبکہ سری نگر میں کم سے کم درجہ حرارت 8 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، رخ کریں گے واپس مین ڈیسک کا۔ شکریہ قاسم۔ اور خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو آگاہ کریں، مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدہ صورتحال کے پیش نظر ریاض میں پاکستانی سفارتخانے اور جدہ میں کونسلیٹ جنرل نے سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں کی سہولت کے لیے ہیلپ لائن قائم کر دی ہے۔ یہ 24 گھنٹے فعال رہے گی اور پاکستانی زائرین اور مسافروں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کرے گی۔ ایئرپورٹس پر موجود عملہ بھی پوری طرح متحرک ہے۔ فضائی آپریشن متاثر ہونے کے باعث سعودی عرب میں موجود عمرہ زائرین اور دیگر پاکستانی مسافروں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اس حوالے سے پاکستان کی سفارتی مشنز، ٹریول ایجنسیز اور مختلف ایئر لائنز کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں تاکہ منسوخ ہونے والی پروازوں کی بروقت ری اسکیجولنگ اور متاثرہ مسافروں کے قیام و طعام کے مناسب انتظامات کو یقینی بنایا جا سکے۔ گزشتہ 2 روز کے دوران سعودی عرب کے مختلف ہوائی اڈوں پر تقریباً 160 پاکستانی مسافروں کو سہولیات فراہم کی جا چکی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی صدارت میں خصوصی ویڈیو لنک اجلاس ہوا جس میں پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام، صاف پانی اور مثالی گاؤں پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے منصوبوں کا تصویری مشاہدہ کیا۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ پنجاب میں 100 سال تک کارابن سیوریج پائپ لائن کی فیکٹری لاہور میں انسٹال کر دی گئی ہے جس میں جلد پیداوار شروع ہوگی۔ مختلف شہروں میں 14,679 مقامات پر اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب اور 3,498 کلومیٹر طویل سیوریج لائنیں بچھائی گئی ہیں۔ اجلاس کو مزید بتایا گیا کہ سرگودا، ڈی جی خان، گجرات، اوکاڑا، جھنگ، ملتان اور سیالکوٹ میں پی ڈی پی پروجیکٹ شروع ہیں۔ جہلم، حافظ آباد، ساہیوال، فیصل آباد، گوجرانوالا، شیخوپورہ، ننکانہ اور راولپنڈی میں بھی منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں نکاسی آب اور دیگر امور کے لیے 526 جدید ترین مشینیں اور ٹریکٹرز فراہم کیے جائیں گے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ پنجاب کے 200 دیہات میں مثالی گاؤں منصوبے کا آغاز کیا گیا ہے۔ مثالی گاؤں منصوبے کے تحت 485 دیہات میں 59 ارب روپے کی ترقیاتی اسکیم شروع کی جائیں گی۔
इजलास में मुख्तलिफ शहरों में साफ पानी की बोतलें फराहम करने के प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। पोठवार में स्मॉल डैम्स के जरिए साफ पानी की फराहमी के प्रोजेक्ट पर रिपोर्ट पेश की गई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मानसून से पहले निकासी आब के प्रोजेक्ट मुकम्मल करने की हिदायत की और ज़ेर ज़मीन गिरती हुई पानी की सतह को बचाने का बड़ा प्लान मुतारिफ कराया। पंजाब की तारीख में पहली मरतबा 358 अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक और रिचार्ज कुएं बनाए जाएंगे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने जेलों में झूठे मुकदमात के तहत गैर कानूनी तौर पर नजरबंद कश्मीरी हुर्रियत रहनुमाओं, कारकुनों और आम नौजवानों की हालत इज़ार पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि भारत नजरबंद अफराद को बड़े पैमाने पर सियासी इंतकाम का निशाना बना रहा है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से एक बयान में कहा कि नजरबंद रहनुमाओं का वाहिद कसूर ये है कि वो गैर कानूनी भारतीय तसल्लुत से आज़ादी और हक़ खुद इरादियत की फराहमी का मुतालबा कर रहे हैं, जिसकी पादाश में भारत ने उन्हें पब्लिक सेफ्टी एक्ट और UAPA जैसे काले कवानीन के तहत बरसा बरस से जेलों में डाल रखा है। उन्होंने कहा कि इस वक्त हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मुसरत आलम भट्ट, शबीर अहमद शाह, मोहम्मद यासीन मलिक और आसिया इंद्राबी समेत 3000 से ज़ायद कश्मीरी मकबूजा वादी और भारत के मुख्तलिफ जेलों में कैद हैं। तर्जुमान ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े नाम नहाद जमहूरी मुल्क भारत ने इलाके में इज़हार राय की आज़ादी का हक भी मुकम्मल तौर पर सल्ब कर रखा है। भारतीय पुलिस ने एहतजाजी मुजाहिरों की बर्दाश्त में श्रीनगर से 120 से ज़्यादा नौजवानों की गिरफ्तारी का एतराफ़ कर लिया है। पुलिस ने तस्दीक की है कि हिरासत में लिए गए नौजवानों में कुछ कम उम्र लड़के भी शामिल हैं। भारतीय फोर्सेस ने मुजाहिरों की पादाश में अब तक पूरे मकबूजा इलाके से 800 के करीब नौजवान गिरफ्तार किए हैं, जिनमें कुछ लड़कियां भी शामिल हैं। इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारतीय हुक्काम पर जोर दिया है कि वो मकबूजा जम्मू और कश्मीर में पुरअमन एहतजाज के हक़ का एहतराम करे। एमनेस्टी इंटरनेशनल का यह बयान ईरान की हिमायत में मकबूजा इलाके में होने वाली हालिया मुजाहिरों और बारज़ां भारतीय हुकूमत की तरफ से मुजाहिरों को रोकने के लिए आयद की जाने वाली पाबंदियों के तनाजुर में सामने आया है। इत्तलात और नशरियात के वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि सियासी और अस्करी क़यादत मुल्क के दाखिली और सफारती महाज पर भरपूर अंदाज में काम कर रही है। लाहौर में साबिक सदर रफ़ीक तारड़ की बरसी की तकरीब के खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि नज़रिया पाकिस्तान ही हमारी बका है और इसकी वजह से हम आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं। तफसील बताएंगे आसिम नज़ीर भट्टी। इदारा नजरिया पाकिस्तान लाहौर में साबिक सदर पाकिस्तान और इदारा नजरिया पाकिस्तान के साबिक चेयरमैन जस्टिस मोहम्मद रफीक तारड़ की चौथी बरसी की तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि दुनिया में रियासत तैयबा और पाकिस्तान ही सिर्फ दो रियासतें हैं जो कलमा तैयबा की बुनियाद पर वजूद में आईं। उन्होंने कहा कि मरहूम रफीक तारड़ ने सारी जिंदगी नजरिया पाकिस्तान और अकीदा खत्म नबूवत पर गुजारी। उन्होंने तहरीक पाकिस्तान के दौरान तलबा तहरीक में मुतहरिक किरदार के जरिए मुहाजिरीन की खिदमत की और क़याम पाकिस्तान के बाद बतौर कानूनदान आइन की पासदारी और ममलिकत खुदादाद के सबसे आला मनसब सदर पाकिस्तान पर रहते हुए अपनी सादगी और ईमानदारी की रोशन मिसालें कायम की। जिंदगी इंतहाई सादगी से गुजारी और जब वो सदर के मनसब पर फाइज हुए तो उन्होंने अपने स्टाफ को ये हिदायत जारी की कि जितनी ज़मीन उनकी गखड़ पीर कोट में उनके वालिद से विरासत में उनको मिली थी वो तमाम ज़मीन हुकूमत पंजाब के नाम कर दी। आज वहाँ पे टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग का एक इंस्टीट्यूट कायम है। वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान मशरिक़ वुस्ता के हवाले से सिफारती सतह पर भरपूर किरदार अदा कर रहा है। बतौर अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन के जो पाकिस्तान ने वहाँ पर स्टांस लिया, ईरान के नुमाइंदे ने वहाँ पे पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आयतुल्लाह ख़ामनाई की शहादत पर दुख का इजहार भी किया, उसकी मजम्मत भी की। सफारती महाज पर जो कोशिशें हैं उस पर पाकिस्तान अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है, करता रहा है, दुनिया के ममालिक के साथ इस पर इंगेज्ड है। वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि तेल की कीमतें आलमी सतह पर ऊपर गई हैं, जिससे तमाम ममालिक मुतासिर हो रहे हैं, लेकिन हुकूमत की कोशिश है कि ऐसे इकदाम किए जाएं जिससे अवाम पर बोझ कम से कम पड़े। तकरीब से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून की रहनुमा और अताउल्लाह तारड़ की वालिदा साजिदा फारूक तारड़ ने अपने ससुर मरहूम रफीक तारड़ की शफकत में गुजरे जिंदगी के 40 सालों का जिक्र करते हुए कहा कि वो नहायत ही शफीक और सबका ख्याल रखने वाले इंसान थे। उनका किरदार हमारे लिए मशअल राह है। वो एक चचा भी थे, वो ससुर भी थे, लेकिन सबसे बढ़ के वो एक बेहतरीन एक नहायत मुशफ़िक बात थी कि उनकी ज़िंदगी का मोटो ऑनेस्टी था, इज़्ज़त, एहतराम, इज़्ज़ो इनकिसारी।
वो उनके किरदार में हमेशा झलकती रही। तकरीब से खिताब करते हुए सीनियर सहाफ़ी और दानिश्वर मुजीबुर रहमान शामी समेत दीगर मुकर्ररीन ने मरहूम रफीक तारड़ की जिंदगी पर रोशनी डाली और मुल्क के लिए उनकी खिदमात को खराज अकीदत पेश किया। इससे कबल साबिक सदर मोहम्मद रफीक तारड़ के इसाले सवाब के लिए कुरान खानी और दुआ भी की गई। आसिम नज़ीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। बीबीसी की तहलका खेज रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि भारतीय फजाइया के लड़ाका तैयारों के बार बार हादसात की बड़ी वजह भारत में बनने वाले नाकिस इंजन है। इंडियन फजाइया का एक लड़ाका तैयारा SU-30 जुमेरात की रात को कार्बी एंगलोंग के मकाम पर गिरकर तबाह हो गया। इंडियन एयरफोर्स ने स्क्वाड्रन लीडर अनुज और फ्लाइट लेफ्टिनेंट पुरेश की हलाकत की तस्दीक कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक SU-30 को इंडियन फजाइया की रीढ़ की हड्डी तस्वर किया जाता है। सुखोई कंपनी का तैयारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलोर और नास्क में तैयार किया जाता है। भारतीय दिफाई तज्जियाकार राहिल बेदी ने कहा है कि इंडियन एयरफोर्स के पास SU-30 साख्त के 272 फाइटर थे, जिनमें से अब 260 रह गए हैं। गुज़िश्ता 15 बरस में इंडियन फजाइया के 1 दर्जन से ज़्यादा SU-30 जहाज़ क्रैश हुए हैं। राहिल बेदी का कहना है कि SU-30 जहाज़ का इतनी बड़ी तादाद में क्रैश होना बहुत गंभीर मामला है। इंडियन फजाइया जहाज़ों के क्रैश होने की इंक्वायरी रिपोर्ट खुफिया रखती है। भारतीय इंडस्ट्रीज राय के मुताबिक SU-30 तैयारे के इंजन में कुछ खराबी है। भारतीय दिफाई तज्जियाकार राहिल बेदी के मुताबिक चंद बरस कबल भी SU-30 के इंजन में खराबी का मामला दबा दिया गया था। इंडियन फजाइया के गुज़िश्ता 50 बरस में तकरीबन 470 MiG-21 जंगी जहाज़ क्रैश हुए हैं। भारतीय MiG-21 के इंजन में भी खामियां थी, लेकिन कभी इस बात को तस्लीम नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि भारतीय फजाइया में शामिल तेजस जंगी तैयारे दुबई एयर शो में हादसे के बाद से ग्राउंड हैं। भारतीय फजाइया के पास इस वक्त 45 स्क्वाड्रन जंगी जहाज़ होने चाहिए, लेकिन इस वक्त इनकी तादाद कम होकर सिर्फ 29 स्क्वाड्रन रह गई है। बीबीसी के मुताबिक भारतीय फजाइया में देसी साख्त के 30 से 32 तेजस जहाज़ हैं और अगर इन्हें हटा दिया गया तो ये तादाद और भी कम हो जाएगी। अगर SU-30 की इंक्वायरी के बाद कोई कमी निकल आती है तो ये इंडियन फजाइया के लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि हुकूमत ने इस्लाहात का जो सफ़र शुरू किया था, इसके मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान बहाली और इस्तेहकाम की राह पर गामज़न है। इस्लामाबाद में वज़ारत मनसूबाबंदी की जानिब से माहाना तरक्याती कारकर्दगी रिपोर्ट के इजरा के मौके पर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि रवा माली साल जुलाई ta फरवरी के दौरान महंगाई की शरह 5.5% रही। उन्होंने कहा कि खत्ते में बहरान ने आलमी सतह पर तेल की कीमतों को मुतासर किया है। बहरानी सूरत हाल में हर पाकिस्तानी को अपना किरदार अदा करना होगा। 22 में से 14 सेक्टर्स जो हैं उन्होंने पॉजिटिव ग्रोथ का मुजाहरा किया, जिसमें बिलखसूस ऑटोमोबाइल्स हैं जिसमें 67%, नॉन मेटालिक मिनरल प्रोडक्ट्स 10%, बेवरेजेस, कोक एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, एपरल, फूड, टेक्सटाइल, टोबैको, ये वो सेक्टर्स हैं कि जिसके अंदर मुस्बत रुझान देखने में आया। रेमिटेंसेस के अंदर तकरीबन 11.3% की का इजाफा आया, जो कि जुलाई से जनवरी तक 23.2 अरब डॉलर रिकॉर्ड की गई, जबकि गुज़िश्ता उससे साल इसी दौरान ये 20.9 बिलियन डॉलर थी। पंजाब की वज़ीर इत्तलाआत अज़मा ज़ाहिर बुखारी ने कहा है कि सूबे भर में 1763 निगहबान रमज़ान बाज़ारों में सहूलियात दी जा रही हैं। लाहौर में सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि पंजाब के अवाम को सहूलतों की फ़राहमी वज़ीर आला मरियम नवाज़ की तरजीह है। तफसील से आगाह करेंगे मौज़ुमुद्दीन। लाहौर में महकमा ताल्लुकात आमा के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पंजाब की वज़ीर इत्तलाआत अज़मा बुखारी ने कहा कि रमज़ान बाज़ारों में अशियाए खुर्दोनोश सस्ते दामों दस्तयाब हैं, जबकि 25,03,897 निगहबान रमज़ान कार्ड्स अब तक तकसीम किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब की हुकूमत सिर्फ तख्तियाँ नहीं लगाती बल्कि अमली तौर पर काम किए जाते हैं। पंजाब भर में 78 साला पसमानगी के खात्मे के लिए अंडरग्राउंड वाटर टैंक, रिचार्ज वेल्स और सीवरेज का जाल बिछाया जा रहा है। 21,96,658 निगहबान कार्ड जो हैं वो कैश भी कराए जा चुके हैं, उसके अंदर से लोगों ने अपनी रकम निकलवा ली है और तकरीबन कुल जो 42 लाख खानदान हैं उन तक इस सहूलत को इंशाल्लाह ताला कुछ दिनों के अंदर कंप्लीट होना है। 10 मार्च चीफ मिनिस्टर साहब ने डेडलाइन दी थी। चीफ मिनिस्टर का एक विजन है कि तरक्की अब चंद इलाकों या चंद शहरों तक जो है वो महदूद नहीं होगी। पंजाब में तरक्की जो है वो हर कोने में, हर छोटे बड़े शहर में और हर देहात में भी नजर आएगी। इस दफा फिर बारिशें ज्यादा होंगी तो हम उसका इंतजार नहीं कर रहे। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने ऑलरेडी इसके ऊपर काम करवाना शुरू कर दिया है और इरिगेशन डिपार्टमेंट हो या CNW हो
یہ تمام جو ڈپارٹمنٹس ہیں، لوکل گورنمنٹ بھی اس کے اندر ظاہرہ شامل ہے، یہ تمام ڈپارٹمنٹس جو ہیں انہوں نے فلڈ کے اوپر بھی جو ہے وہ جو اس کی تیاری ہے اس کے اوپر کام شروع کر دیا۔ صوبائی وزیر بلدیات ذیشان رفیق نے کہا کہ پنجاب میں ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ قائم کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 517 ارب کی لاگت سے 67 شہروں میں کام شروع ہو چکا ہے۔ 358 صرف واٹر ٹینک ہی نہیں بن رہے بلکہ یہ گراؤنڈ واٹر کو ریچارج بھی کریں گے۔ روڈ سائڈ واٹر اسٹوریج ٹینکس جو بنائے جا رہے ہیں، تو یہ کانسیپٹ ہے ایکچولی جو آپ کو سامنے اسکرین میں بھی نظر آ رہا ہے، یہ 358 صرف واٹر اسٹوریج ٹینکس نہیں بن رہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ ریچارج ویلز بھی ہوں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس کے ساتھ گراؤنڈ واٹر کو واٹر ٹیبل جو ہے نا اس کو ریچارج بھی کیا جائے گا۔ پنجاب کے تمام شہروں کے اندر ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس بننے جا رہے ہیں۔ آج تک کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس جو ہے نا وہ بنے تاکہ اس سیویج واٹر کو ٹریٹ کر کے اس کو بھی استعمال میں لایا جا سکے۔ صوبائی وزراء نے کہا کہ پنجاب کے ہر دیہات میں مثالی پروگرام شروع کیے جا رہے ہیں۔ 5 سال کے بعد بدلا ہوا جدید اور خوبصورت پنجاب نظر آئے گا۔ معظم الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ یتیم بچے پوری قوم کے بچے ہیں اور ان کی خوشی میں شریک ہونا باعث مسرت ہے۔ گورنر ہاؤس پشاور میں پاکستان یوتھ پارلیمنٹ کے تعاون سے یتیم بچوں کے اعزاز میں افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر خیبر پختونخوا نے کہا کہ حکومت کے ساتھ معاشرے کے ہر فرد کو انفرادی اور اجتماعی طور پر ان بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ تقریب کے اختتام پر گورنر خیبر پختونخوا کی جانب سے بچوں میں تحائف بھی تقسیم کیے گئے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے پیر سید زیغم عباس کی قیادت میں وفد نے لاہور میں ملاقات کی۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ علماء کرام ممبر سے عوام کو برداشت، صبر، استقلال اور امن کا پیغام دینے میں اپنا کردار ادا کریں۔ گورنر سردار سلیم حیدر نے کہا کہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر احتجاج کی آڑ میں اشتعال انگیزی پھیلانے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ سندھ کے گورنر کامران خان ڈسوری نے کراچی میں سلطنت عمان کے کونسل خانے کا دورہ کیا۔ کونسل جنرل سمیع عبداللہ سالم سے ملاقات میں مشرق وسطی سمیت عالمی صورتحال اور پاک عمان دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر سندھ نے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں پاکستان عمان کی حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ اسلام کی عظیم المرتبہ شخصیت اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی علم، تقوی اور دین اسلام کی خدمت سے عبارت ہے۔ حضرت عائشہ کے یوم وصال پر ان کی زندگی پر روشنی ڈال رہی ہیں کراچی سے نورین آصف اپنی اس رپورٹ میں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پیدائش اسلام کے ابتدائی دور میں ہوئی۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہونے کی حیثیت سے انہوں نے ہوش سنبھالتے ہی اپنے گھر میں اسلام کی روشنی دیکھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی پیدائش اور پرورش اسلام کے مکمل ماحول میں ہوئی، جس کے باعث ان کی شخصیت پر اسلام کے گہرے نقوش تھے۔ آپ کم عمری ہی سے علم و دانائی میں ممتاز تھی۔ آپ کی پوری زندگی اسلام کی سربلندی، ان کی اشاعت اور امت کی اصلاح کے لیے وقف رہی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے کم عمر زوجہ مطہرہ تھیں۔ ام المومنین عفیفہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ علمی ہستی ہیں کہ آج بھی سیاہ ستہ کے اندر 2210 احادیث مبارکہ آپ سے مروی ہیں۔ قرآن کریم کی سورۃ النور میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی کے حوالے سے آیات نازل ہوئیں جو آپ کے بلند مقام کی واضح دلیل ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ وصال نبوی کے تقریباً 48 سال تک حیات رہیں اور یوں نصف صدی تک روز و شب عالم اسلام کو انوار الہی اور اسماء حسنہ سے منور کرنے کے بعد یہ محسنہ امت 17 رمضان المبارک 58 ہجری کو اس جہان فانی سے رحلت فرما گئیں۔ آپ کا وصال مدینہ منورہ میں ہوا۔ نورین آصف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ 17 رمضان المبارک آج کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمان میں غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ تفصیل جانتے ہیں کراچی سے ذیشان احمد خان کی رپورٹ میں۔ یوم الفرقان یعنی غزوہ بدر حق و باطل کا وہ پہلا معرکہ جس میں سرور کائنات احمد مجتبیٰ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت کی۔ غزوہ بدر وہ معرکہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حضور یہ دعا مانگی جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ، یہ تیرے 313 بندے آج دشمن کے خلاف کھڑے ہیں، انہیں کامیابی عطا فرما، اور اگر آج یہ نہ رہے تو آخر تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔
इस दुआ की कबूलियत का दर्जा ये है कि अल्लाह ताला ने गैब से फरिश्ते ज़मीन पर उतारे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों की मदद की। ग़ज़वा बदर ये इस्लाम का सबसे पहला और सबसे बड़ा एक वो मार्का है कि जिसने हक़ व बातिल के दरमियान एक खुली तफरीक कर दी और हक़ को एक तरफ बातिल को दूसरी तरफ कर दिया। हिजरत मदीना के बाद मुसलमानों की बढ़ती हुई ताकत, मुख्तलिफ कबाइल और यहूद के साथ मुआहिदे और मक्का और शाम के दरमियान तिजारती शाहराह का मुसलमानों की दस्तरस में आना कुरैश और कुफार मक्का के लिए एक भयानक ख्वाब से कम न था। अहले मक्का का ज़रिए माश तिजारत था। कुफार ने तिजारत के नफ़ा का मखसूस हिस्सा मुसलमानों के खिलाफ जंगी तैयारों पर मुख्तस करना शुरू कर दिया। 2 हिजरी में मुसलमानों ने कुफार मक्का के तिजारती काफिले को रोकने की कोशिश की, ताहम वो काफिला अबू सुफियान की क़यादत में बच निकला। काफिले वालों ने ये इत्तला मक्का मुकर्रमा पहुंचाई। मक्के से 1000 मुसल्लह अफराद काफिला बचाने निकले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा जंग से पहले निहायत मौसर, दिलनशीन और जामे खिताब किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिताब से मुस्लिम लश्कर का हौसला दो चंद हुआ। जंग के दस्तूर के मुताबिक आगाज में इनफरादी मुकाबले हुए। आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब और चचाजाद भाई अली इब्ने अबी तालिब और उबैदा बिन हारिस रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को मैदान में उतारा। लश्कर कुफार से अतबा बिन रबिया, शैबा बिन रबिया और वलीद बिन अतबा मुकाबले पर थे। तीनों काफिर इनफरादी मुकाबलों में मारे गए। अक्सर बड़े सरदार और कुफार के सरगना अबू जहल समेत 70 कुफार जहन्नुम वासिल, जबकि 70 ही गिरफ्तार हुए। मुसलमानों की जानिब से 14 सहाबा इकराम शहीद हुए। इस जंग में फतह से सारे अरब में मुसलमानों की धाक बैठ गई और कुफार मक्का और मुशरिकीन और कबाइल को मुसलमानों की हरबी और सियासी ताकत का बखूबी अंदाजा हो गया। ज़िशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली हर दिल अजीज शख्सियत राजा मुबारक कियानी को बरतानिया में उनकी शानदार समाजी कम्युनिटी खदमात के एतराफ़ में कोवेंट्री सिटी काउंसिल की जानिब से एजाज़ से नवाजा गया। इस मौके पर कौंसिल के मुंतज़मीन का कहना था कि हाजी मुबारक कियानी का कम्युनिटी के लिए काम करने का जज्बा काबिल तहसीन है। खेलों की खबरों में आपको खुश आमदीद कहते हैं। FIH हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर का फाइनल आज पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा। मिस्र के शहर इस्माइलिया में होने वाला मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे शुरू होगा। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने जापान के खिलाफ 3 के मुकाबले में 4 गोल से कामयाबी समेटकर 8 साल बाद वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने पर कौमी हॉकी टीम को मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म ने खिलाड़ियों को मजीद मेहनत जारी रखने की नसीहत की और कहा कि हुकूमत तमाम तर सहूलियात फराहम करेगी। सदर ममलिकत ने कहा कि ये कामयाबी पाकिस्तान में नौजवान खिलाड़ियों के लिए हौसला अफजा पैगाम है। खेल कौमी इत्तेहाद, नज़्म व ज़ब्त और सेहतमंद मुआशरे के फ़रोग में अहम किरदार अदा करते हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की हिदायत पर नेशनल क्रिकेट एकेडमी में कौमी हॉकी खिलाड़ियों का रीहैब प्रोग्राम जारी है। हॉकी खिलाड़ी हनान शाहिद को हैमस्ट्रिंग इंजरी जबकि सलमान रज़ाक को घुटने की इंजरी लाहक थी। मेरा नाम है हनान शाहिद, पाकिस्तान इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर। जैसा कि आपको पता है मेरी इंजरी का जो रीहैब है वो MCA में चल रहा है अंडर दी सुपरविजन ऑफ डॉक्टर जुवेद मुगल साहब और अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी बेहतर है मेरी इंजरी और इंशाल्लाह ताला आई एम होपिंग के आफ्टर मे बी 3 to 4 वीक्स इंशाल्लाह ताला दोबारा अपनी स्पोर्ट्स में वापस होऊंगा। मैं सलमान रज़ाक इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर। मैं जैसे कि NCA में डॉक्टर जुवेद मुगल के अंडर रिहैब मेरा चल रहा है जो कि मोहसिन नकवी साहब का एक बड़ा बेहतरीन इनिशिएटिव है। मैं चाहता हूँ कि इस तरह के जो सेंटर हैं पाकिस्तान में और भी बनाया जाए और इस तरह के जो डॉक्टर हैं उनको लगाया जाए ताकि जो प्लेयर्स हैं, जो प्लेयर्स की इंजरीज़ हैं उनको जल्दी से जल्दी कवर किया। मैं इस रिहैब से बहुत सेटिस्फाई हूँ और उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह मैं जल्दी टीम में कम बैक करूँगा। ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल कल न्यूजीलैंड और भारत के दरमियान खेला जाएगा। अहमदाबाद में शेड्यूल मुकाबला शाम 6:30 बजे शुरू होगा और PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने जनूबी अफ्रीका को 9 विकेटों से शिकस्त दी। दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ 7 रन से कामयाबी समेटी। भारत चौथी मरतबा T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रहा है जबकि न्यूजीलैंड ने दूसरी मरतबा फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। भारतीय टीम 2 मरतबा टाइटल जीत चुकी है जबकि कीवीज 2021 में रनर अप रहे थे। T20 वर्ल्ड कप की तारीख में भारतीय टीम अब तक न्यूजीलैंड से मैच नहीं जीत सकी। दोनों टीमों के दरमियान अब तक 3 मैच खेले जा चुके हैं और तीनों में न्यूजीलैंड फाते रहा है। इसके साथ ही बुलेटिन का वक्त खत्म हुआ। मजीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त।
हर वक्त बर वक्त।